السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ ناظرین کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک KPIs ہم مقرر کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو ہم شاباش دیں گے اچھے نتائج کے حوالے سے، اور جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تادیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بالکل۔ دس میسج آئی وانٹ ٹو میک لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ معاشی ترقی کے لیے ہم سب مل کر جو کاوشیں کر رہے ہیں وہ رنگ لائیں گی۔ سٹاک ایکسچینج کا تاریخی بلندی پر پہنچنا حکومتی پالیسیز پر کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر۔ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا ہر 2 ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا۔ کارکردگی اور معیار پر پورا اترنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اچھی کارکردگی پر شاباش، خراب پر تادیبی کارروائی ہوگی۔ سانحہ سواد جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے لاہے عمل کی تشکیل ضروری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ پینشنرز کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی کابینہ نے EOBI پینشن میں 1 جنوری 2025 سے 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی EOBI میں اصلاحات سے متعلق کابینہ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کینسر، امراض قلب اور زندگی بچانے والی ادویات کی درآمد پر مزید 5 سال تک کے لیے استثناء کا فیصلہ۔ جان بچانے والی درآمدی ادویات کی کھلے عام فروخت پر پابندی عائد۔ ادویات کی درآمد کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری لینا ہوگی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی ملاقات۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر وزیر دفاع کو مبارکباد، ایویشن ڈویژن کی تعریف۔ برطانیہ کے لیے پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے۔ PTI رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولیات میں اضافہ اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم ہوا بازی کی صنعت کے لیے خوشگوار جھونکا، برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ختم۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ تمام پاکستانی ایئر لائنز برطانیہ کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا پاکستان کے ہوائی جہازوں کو فہرست سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ برطانیہ اور پاکستان میں ہوا بازی کے ماہرین سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی تیانجن میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ SCO وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی شاندار میزبانی پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا چین پاکستان اقتصادی راہداری اور کثیر الملکی تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی حکومت کا 31 جولائی تک یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش اور نجکاری سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ ملازمین کے لیے منصفانہ اور مالی طور پر قابل عمل رضاکارانہ علیحدگی اسکیم پر تفصیلی سے غور۔ VSS کی تیاری اور نجکاری کے نظام اوقات مرتب کرنے کا ٹاسک۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ ترقیاتی منصوبے کے پہلے مرحلے کو نومبر تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ اجلاس میں شہروں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں پر رپورٹ پیش۔ پنجاب کا کوئی شہر اب ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا۔ تمام شہروں کو لاہور کی طرز پر خوبصورت اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से PFUJ, RIUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। सहाफ़ियों के वकार, आज़ादी और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अदायगी में हर मुमकिन ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। हुकूमत आज़ाद सहाफ़त को माशरती बेहतरी का सतून समझती है और इसके दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम। एक और बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 40 अरब करप्शन का केस इंक्वायरी से तफ्तीश में तब्दील कर दिया। 25 अरब की असासे मुंजमद, 175 किनाल अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के, 109 जायदादें मुख्तलिफ शहरों से कब्जे में ले ली गईं। बदउनवानी से कमाए गए 1 अरब रुपए, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना जब्त। तस्वीर और वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर। रोजनामा जंग और द न्यूज की रिपोर्ट। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर कल्लात के करीब फायरिंग, 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी, DHQ मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की शदीद मज़म्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मुजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सदारत में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। पाक बहरिया की पॉलिसीज और मंसूबों का तफसीली जायजा। एडमिरल नवीद अशरफ ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों को सराहा। बहरी रास्तों पर तिजारत की रवानी यकीनी बनाने के इकदामात की तारीफ। सरबराह पाक बहरिया का मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अंबरीन जान का दौरा चीन। SCO रुकन ममालिक के दूसरे टेलीविजन फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान टेलीविजन और चीन के गुआंगजी रेडियो और टेलीविजन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी इत्तलात अंबरीन जान और गुआंगजी रेडियो टेलीविजन की डेप्यूटी एडिटर इन चीफ ने दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दस्तावेजी फिल्म तरक्की का रास्ता पाकिस्तान बनाई जाएगी। फिल्म आइंदा बरस 21 मई को पाकिस्तान टेलीविजन और गुआंगजी टेलीविजन पर नशर की जाएगी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के दर पे। सिक्योरिटी फोर्सेज के जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कामयाब कार्रवाई में दहशत गर्द हमलों में मुलव्विस खारजी हमीद जहन्नुम वासिल। खारजी के वरसा ने लाश लेने से इनकार कर दिया। भारत को मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों और अवाम की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में पैरा मिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मजीद 20 बटालियन तैनात कर दी। कश्मीरियों को जमीनों, घरों और दीगर अमलाक से महरूम करने का सिलसिला तेज। बडगाम में मजीद 3 कश्मीरियों की अमलाक जब्त। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारतीय हथकंडों की शदीद मज़म्मत। बीजेपी सरकार में भारतीय मुसलमान बंगालियों के लिए खिलाफ तासुब उरूज पर। भारतीय कठपुतली साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना के इक़्तिदार छिन जाने के बाद बंगाली मुसलमान बीजेपी के निशाने पर। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी मोदी सरकार की दहशत गर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी फैलाने की मज़मूम कोशिश। मोदी सरकार और गोदी मीडिया बंगाली मुसलमानों को सियासी और मुआशी तौर पर तबाह करने के दर पे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शिकस्त के बाद हजीमत छुपाने की भारतीय कोशिश नाकाम। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर का दुनिया की बड़ी फौज बनने का दावा। अजीत डोवल का मन घड़त बयानिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की अलामत। भारतीय फौजी क़यादत मुतादिद बार तैयारों के तबाह होने और नुकसानात का एतराफ़ कर चुकी। पाकिस्तान अपने दिफा में भारत में किसी भी जगह पर जवाबी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है।
پہلگام فالس فلیگ بے نقاب، مقبوضہ کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پہلگام فالس فلیگ کا پردہ چاک کر دیا۔ فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے حملہ آوروں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ امن و امان کی ذمہ دار مودی سرکار ہے، سیکیورٹی ناکامی پر جواب طلبی کی جائے۔ مودی سرکار پہلگام واقعے پر عوام سے معافی مانگے اور مستعفی ہو جائے۔ ترجمان کانگریس۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ، وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں، شیخوپورہ 217 ملی میٹر، اکاڑا 170، ساہیوال 80، چیچا وطنی 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تمام متعلقہ محکمے ہائی الرٹ۔ رواں سال مونسون بارشوں کے باعث پنجاب میں اب تک 77 شہری جاں بحق، 214 زخمی ہوئے، 74 مکانات متاثر اور 6 مواشی ہلاک ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا، فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 94 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی۔ خان یونس میں امدادی مرکز پر بھگدڑ مچنے سے 20 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ غزہ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے اقوام متحدہ کی 8 مختلف ایجنسیز کے آپریشنز بند، اسرائیل فلسطینیوں کے محفوظ انخلا میں رکاوٹ، ہسپتالوں تک ضروری طبی سامان کی ترسیل بھی محدود، طبی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں 10,000 سے زائد افراد کو بیرون ملک فوری طبی امداد درکار ہے۔ عالمی ادارہ صحت۔ اسرائیلی فوج کے دمشق میں شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر، وزارت دفاع کی دفاتر اور جنوبی شہر سویدا میں حملے، 13 افراد زخمی۔ اسرائیل کا شامی فورسز پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ شام میں مقامی مسلح گروپوں کے درمیان جاری خونریز جھڑپوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک۔ دمشق پر اسرائیلی حملے شام میں امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے، ترک وزارت خارجہ۔ تھائی لینڈ میں دوسری ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان کی مسلسل چوتھی کامیابی، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کی انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست۔ ได้ในเซตที่3ค่ะเป็นทางด้านของทีมปากีสถานค่ะเอาชนะทีมอินโดนีเซียไปด้วยคะแนน بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز قومی کرکٹ ٹیم ڈھاکہ پہنچ گئی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 20، دوسرا 22 اور تیسرا میچ 24 جولائی کو شیڈیول ہے۔ تمام میچز شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور ہرارے میں 3 ملکی T20 کرکٹ سیریز، نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 21 رن سے ہرا دیا۔ ٹم روبنسن نے 75 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ 173 رنز کے جواب میں جنوبی افریقی ٹیم 152 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ Oh yes, there you go. It's not middled. Is it going to bounce short? No, it's not. Jimmy Neesham, he doesn't drop catches. He has got wonderful hands. Is 17. ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب بھی، لیکن پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ موسمی برسات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی زیر قیادت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے BDMA پنجاب کے خصوصی اقدامات، پنجاب کنٹینجنسی پلان 2025 کی تشکیل، صوبہ بھر کے ندی نالوں کی مکمل صفائی ستھرائی یقینی، ضلع کی سطح پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر۔ عوام بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں، بوسیدہ مکانات اور مخدوش عمارتوں میں رہائش نہ رکھیں، برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم میں کوڑا کرکٹ ہرگز مت پھینکیں، بچوں پر خصوصی نظر رکھیں، دریاؤں اور نہروں میں نہانے کے خلاف
दफा 144 का नफाज है, लिहाजा शहरी इंतजामिया से ताउन करें। भीगे हुए बर्क़ी आलात, खंभों और जमीन पर गिरी तारों को मत छुएं। छतों की सफाई और निकासी आपको यकीनी बनाए। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बना। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिश हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया है। बेहतर कारकर्दगी पर सताइश जबकि खामियों पर जवाबदेही होगी। हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम मुकर्रर कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे और उस परफॉर्मेंस को हम सामने रखकर उन वजारतों को उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर। Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. मानसून बारिशों में नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबों के साथ मिलकर इक़दामात के लिए पहले ही हदायत जारी की जा चुकी। सानह सवात जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लायामल की तश्कील जरूरी है। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें बराबर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजर है। उन्होंने कहा कि PSDP के तहत तरक्याती इखराजात 1 ट्रिलियन से तजावुज कर गए हैं, जिस पर वज़ीर मनसूबाबंदी और वज़ीर खजाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने पर वज़ीर दाखिला, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में तकरीबात, जुलूसों और मजालिस का इनेकाद कौमी वहदत और भाईचारे की अकास है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेंशन में ये इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी जाए। ये कमेटी इस्लाहात के साथ घरेलू मुलाजमीन समेत गैर मुनज़्ज़म लेबर सेक्टर के नज़रअंदाज मुलाजमीन को ओल्ड एज बेनिफिट्स की फ्राहमी से मुताल्लिक तजावीज़ मुरतब करेगी। काबीना ने वज़ारत कौमी सेहत की सिफारिश पर कैंसर, अमराज़ क़ल्ब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर मज़ीद 5 साल का इस्तिस्ना देने की मंजूरी दी। ये अद्वियात सिर्फ अस्पतालों और मुतालिका इदारों में दस्तयाब होंगी और इनकी खुले आम फरोख्त पर पाबंदी होगी और इनकी दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार होगी। वफाकी काबीना ने सी कैरेज शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसवदे के हवाले से ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों के दोबारा आगाज़ को पाकिस्तान के लिए अहम संग मील करार दिया है। वज़ीर दिफा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा को और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि इक़दाम से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलियात में इजाफा होगा और सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में सियासी और वजारत के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने आयत पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी और हवाबाजी डिवीज़न की तारीफ की।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برطانوی ایئر سیفٹی بورڈ کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے قومی ایوییشن شعبے کی بہتری کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیصلے کو برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان قرار دیا اور اس اہم کامیابی پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزارت دفاع اور ایوییشن ڈویژن کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس مثبت پیش رفت سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت قومی ایوییشن کے شعبے میں شفافیت، معیار اور عالمی تقاضوں کے مطابق اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری رکھے گی۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پاکستان کے لیے اچھی خبر، پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کی درخواست دے سکتی ہیں، اسی حوالے سے رپورٹ کریں گی نمرہ سہیل۔ حکومت پاکستان کی مسلسل کاوشوں اور متحرک سفارتکاری کے نتیجے میں برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایوییشن سیفٹی میں بہتری پر یو کے ایئر سیفٹی کمیٹی نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم کی۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے یو کے سول ایوییشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ سیفٹی لسٹ سے اخراج آزاد اور تکنیکی عمل کے تحت ہوا۔ اہم ترین پیش رفت کے بعد برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اپنے بیان میں پاکستان اور یو کے ماہرین کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کرنے کی منتظر ہوں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ پاکستان کے ایئر لائنز کے شعبے میں اہم ترین پیش رفت پر اپنے بیان میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ایئر سیفٹی لسٹ سے ہٹانے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالنے کے لیے کام کی بنیاد پی ڈی ایم حکومت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ڈالی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں 3 قانون سازیوں سمیت اہم اصلاحات کی۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ برطانوی حکام کے ساتھ اہم سفارتی اور تکنیکی کاوشیں کی تاکہ پابندیوں کا جلد خاتمہ ہو سکے۔ قومی ایئر لائنز کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے ایک بار پھر برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی آپریشن کا باضابطہ آغاز اسلام آباد سے مانچسٹر کی پروازوں سے ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں اس وقت کے وزیر غلام سرور کے بیان کے بعد پاکستان پر فضائی پابندیاں لگنا شروع ہوئیں اور برطانیہ نے بھی
जून 2020 में कौमी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की। सिविल एविएशन और हुकूमत की अनथक कोशिशों के बाद नवंबर 2024 में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी उठाई, जिसके बाद अब बरतानिया ने भी पाकिस्तान पर 5 साल से लगी पाबंदी खत्म कर दी है। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारती हुजम 4.7 बिलियन पाउंड है। एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म होने के बाद पाक बरतानिया माशी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी का खात्मा PIA की निजकारी के अमल को मजीद मुनाफा बख्श बनाएगा। देखते हैं अम्माद अवान की रिपोर्ट। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने को संग मील करार देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया समेत यूरोप के 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी बाशिंदे PIA इस्तेमाल करते हैं। माजी में तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़रा ने अपने बयानात से कौमी एयरलाइन का वकार मजरू किया। अरबों रुपये नुकसान हुआ, जिसकी जिम्मेदारों का तयन करना भी ज़रूरी है। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था। हुकूमत भी जो है इस चीज़ को परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाबंदी के खात्मे से PIA की वैल्यू एडिशन हुई है, जो निजकारी के अमल को मजीद मुनाफा बख्श बनाएगी। जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है। उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी, क्योंकि हम PIA को एक इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि PIA से अवाम का जज्बाती लगाव है। ये हमारी कौमी शनाख्त है, जिसको अब बरतानिया के बाद अमरीका की बराह रास्त परवाज़ों के लिए भी फ़ाल करने की कोशिशें जारी रहेंगी। अम्माद अमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वजारत से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। एक और अहम खबर यहाँ पर आपको देंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला अवारान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रबनवाज तारिक ने जाम शहादत नोश किया। 34 साल शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर सैयद रबनवाज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दस्ते की क़यादत कर रहे थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। जवानों की शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेज के इस अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं कि मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर उखाड़ फेंका जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवारान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अक़ीदत पेश किया और शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। उन्होंने पाक फौज के अफसरान और जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
कल्लात बलोचिस्तान में कोच पर फायरिंग से 3 मुसाफिर शहीद हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि वाक़या कल्लात के इलाके नमरख में पेश आया। 7 जख्मी मुसाफिर DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमलावरों के ताक़ुब में हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा आ रही थी। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में बच जाने वाले मुसाफिरों के मुताबिक दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे जो कोयटा जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कवाली के प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधा घंटे की दूरी पर थे कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं नदीम साबरी, माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। कराची से हम कोयटा जा रहे थे, अचानक हमारे ऊपर जो है ना हमला हुआ, चारों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 3 अफराद जो है बंदे शहीद हो गए, जिसमें बाकी कुछ जख्मी भी हैं। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल्लात में मुसाफिर बस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है और फायरिंग के नतीजे में मासूम शहरियों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शोहदा की बुलंदी दर्जात और लाहिकीन के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ की। सदर और वज़ीर आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मासूम और निहत्ते शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मुज़म्मत फेल है। दहशतगर्द अमन व इस्तेहकाम को सबोताश करना चाहते हैं। ये इंसानियत और अमन के दुश्मन हैं। सदर ममलकत ने कहा कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने 40 अरब रुपए मालियत के करप्शन इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे अदनान शाह। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक की कार्रवाइयों में 25 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए हैं। नैब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1 अरब रुपए नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलोग्राम सोना, 77 कीमती गाड़ियाँ और फार्म हाउसेज, फ्लैट्स, मकानात, कमर्शल प्लाजो, दुकानों और ज़री ज़मीन पर मुश्तमिल 109 जायदादें तहवील मिली है। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों के 73 अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए से ज़्यादा मौजूद थे। जिन लोगों के नाम पर ये पैसे निकले वो सारी फेक और जाली उन्होंने कंपनियां बनाई हुई थी कंस्ट्रक्शन की, यानी उन्होंने कंस्ट्रक्शन की जाली कंपनियां बनाई और फिर वो एक बिल बनाते थे कि जी हमने काम मुकम्मल कर लिया है, लिहाजा हमारी सिक्योरिटी और रिटेंशन मनी जो है वो वापस की जाए। मेगा करप्शन स्कैंडल में अब तक गिरफ्तार किए जाने वालों में कंट्रैक्टर मोहम्मद अयूब शामिल है। मुलजिम के ज़ाती अकाउंट में 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। इतलात के मुताबिक मुलजिम ने करप्शन की रकम से साबिक सेनेटर आजम स्वाति की जायदाद भी खरीदी। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद कई अहम शख्सियात की गिरफ्तारी मुतवक्के है। नैब के तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि इस मेगा फ्रॉड में सरकारी अफसरान, ठेकेदार और बैंक हुकाम मुबैना तौर पर शामिल हैं। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि इस स्कैम में तकनीकी तरीके से कौमी खजाने से अरबों रुपए निकाले गए हैं। कुछ शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ लोग इसमें बासर लोग भी मुलविस हैं, चूँकि ये जो नीचे जो अमला था ये उनके दस्तखतों से, उनकी डॉक्यूमेंटेशन से हुआ है, लेकिन इनको सपोर्ट यकीनन सियासी और ब्यूरोक्रेटिक जो सर्कल्स हैं उनकी इनको सपोर्ट थी। ये स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती बदउनवानी का केस करार दिया जा रहा है, जिसमें तरक्याती फंड्स की खुर्द-बुर्द और मनी लॉन्ड्रिंग की संगीन तफसीलात सामने आ रही है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और कसीरुल मुल्की ताउन समेत अहम उमूर पर बातचीत की। रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी करीबी ताउन को सराहा। फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। इसहाक डार ने इजलास के कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी और शानदार मेज़बानी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 के 2593 जबकि लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2274 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इजलास में वासा प्रोजेक्ट से मुंसलिक 1573 मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सड़कों और गलियों को खूबसूरत बनाने और लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फ़ेज़ 1 को नवंबर 2025 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया। इजलास में वज़ीर आला को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर व मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई, जबकि 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मनसूबे शुरू करने का फैसला किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश और निजकारी से मुतालिक वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएंगे। कमेटी ने मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल रजा कराना अलहदगी स्कीम पर भी तफसीली गौर किया। इजलास में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में ज़ैली कमेटी कायम की गई। कमेटी की रिपोर्ट हफ्ते के आखिर तक कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। मुरतब करदा सिफारिशात की हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कुछ बात करेंगे यहाँ पर PSX की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 440 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,36,379 पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ मुल्क के मुआशी आशारी मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, बल्कि मईशत भी मुस्तहकम होती जा रही है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद सरमायाकार पुर उम्मीद हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा आने वाली ज़री पॉलिसी में भी कमी होगी। दूसरी जानिब हुकूमत अपनी कामयाब इक़्तिसादी पॉलिसियों को आलमी सतह पर मुतारिफ करवा रही है ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर हो सके और ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान का रुख करे। मार्केट में तेजी की मेन ट्रिगर्स हैं हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज, जिसके असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले रिजल्ट सीजन में काफ़ी हौसला अफजा रिजल्ट की उम्मीद है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं और सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। LSM का डेटा जिसके हवाले से काफ़ी कंसर्न था, अब वो भी अपसाइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है इकॉनमी में। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 482 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 223 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 221 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 38 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 32 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत के 3,57,000 सौदे हुए, जिनमें 70 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में फर्टिलाइजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और फूड्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की सहूलतकारी से कारोबारी इदारों और ज़राई फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के है। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे हमजा जमान की ये रिपोर्ट। SIFC की मुआवनत से छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों और ज़री फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के है। कराची में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की बैंकों के CEO से मुलाकात हुई। इस मौके पर SMEs फाइनेंसिंग में 41% और ज़री फाइनेंसिंग में 15% इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मईशियत में इस्तेहकाम मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत और SMEs के तरजीही शोबों की फाइनेंसिंग के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम किए। हुकूमत के तरगीबी इक़दामात और SIFC की मुआवनत से हुकूमत के तरजीही शोबों में सरमायाकारी में बेहतरी आई है। हमजा जमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद सहाफ़त को माशरती बेहतरी का सतून समझती है और इसके दिफा के लिए पुरज़्म है। सहाफ़ियों के वक़ार, आज़ादी और पेशा वाराना तहफ़्फ़ुज़ को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में PFUJ, RIUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक विर्क के साथ पेश आने वाले वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मामले को हल करना मेरी तरजीह है। सहाफ़ियों को उनके फ़राइज़ की अदायगी में हर मुमकिन ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुलाकात में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात और मैनेजिंग डायरेक्टर PTV अम्बरीन जान और ग्वांगशी रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन के डिप्टी एडिटर इन चीफ येंग गोई के दरमियान खुसूसी दस्तावेजी फिल्म तैयार करने के लिए मुआहिदा तय पा गया। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे अहमद फराज की। हर जमाना और हर तरह के हालात की आजमूदा पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। दोनों मुल्कों के शानदार सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के पुरमसरत मौके पर एक और अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और चीन के मवासलाती इदारे ग्वांगशी रेडियो एंड टेलीविजन के माबेन ताउन का मुआहिदा तय पा गया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन अम्बरीन जान और चीन के मीडिया इदारे की डिप्टी एडिटर इन चीफ जेंग कोई ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों के मीडिया इदारे देरीना दोस्ती और तरक्याती ताउन की अक्कासी करती खुसूसी दस्तावेजी फिल्म तरक्की की राह पाकिस्तान बनाएंगे। 2 इकसात पर मुश्तमिल ये दस्तावेजी फिल्म आइंदा साल नशर होगी। ये दस्तावेजी फिल्म न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान 75 साल पर मुहित सिफारती ताल्लुकात की यादगार होगी, बल्कि अवामी सतह पर रवाबित को मजीद मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब में दोनों फरीकैन ने मीडिया, सकाफत और अवामी रवाबित के फरोग को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार किया। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ खबरें यहाँ पर बुलेटिन में शामिल करेंगे भारत से, जहां मोदी सरकार सिर्फ दावों तक ही महदूद है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला ने मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए बुनियादी ढांचे के टूटने पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट करेंगी किंजा नकवी। मोदी सरकार को तीसरी बड़ी मईशत बनने के खोखले दावे पर कड़ी तनकीद का सामना। पुलों, सड़कों और इमारतों के गिरने के मुसलसल वाक़यात मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने मानसून के दौरान सड़कों के धंसने और पुलों के टूटने के वाक़यात पर कहा है कि अगर मुल्क में पुल गिर रहे हों, सड़कें बैठ रही हों और लोग मर रहे हों तो इस तरक्की का क्या फायदा। आणि मग आताच्या काळामध्ये आता मगाशी सांगितलं आपली तिसरी अर्थव्यवस्था होणार वगैरे सगळं खरं आहे, पण तिसरी अर्थव्यवस्था होत असताना देखील आपल्या इमारती पडतायत, पूल पडतायत, कसं काय? त्याला कोण जबाबदार आहे? मग पूर्वीचे लोक जास्त तुमच्यापेक्षा हुशार होते का? दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन कबल मोदी ने दावा किया था कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी मईशत बनने जा रहा है। इस बयान पर कई मुफस्सिरीन ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया कि GDP में इजाफा मुल्क में अदम मसावात और बुनियादी सहूलियात की कमी को नहीं छुपा सकता। दी वायर के मुताबिक मोदी सरकार की नाअहली की वजह से आम शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी। 15 जून को पुणे की अंदरयानी नदी पर पुल गिरने से 4 अफराद, जबकि 9 जुलाई को वडवरा में महिसागर नगरी पर पुल गिरने से 20 अफराद जान बहक हुए। 4 जुलाई को 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मुंबई फ्लाईओवर पर चंद दिनों बाद ही गड्ढे बन गए। 10 जुलाई को गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क धंसने से ट्रक गड्ढे में जा गिरा। मोदी सरकार पर इत्तेहादियों की तनकीद से जाहिर होता है कि मुल्क की तरक्की के दावे हकीकत के बरक्स हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक मरतबा फिर बेनकाब। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मोदी सरकार का झूठा साबित कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शब्बीर। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए मनोज सिन्हा ने तस्लीम किया कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे हमला आवरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। दी वायर के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एतराफ के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। तर्जुमान कांग्रेस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान की जिम्मेदारी
मोदी सरकार की है। सिक्योरिटी नाकामी पर इससे जवाब तलबी की जाए। जमहूरियत का मतलब है मोदी सरकार पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए आवाम से माफी मांगकर मुस्ताफी हो जाए। ये जो घटना जहाँ हुई वहाँ एक सरकारी कमरा भी नहीं है। उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू में फैसला किया गया था कि फिलहाल के लिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। रिवायत के मुताबिक मोदी सरकार पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद आलमी सतह पर दिखाने में नाकाम रही। शवाहिद आलमी सतह पर न दिखाने से मोदी सरकार के पाकिस्तान पर इल्जाम शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एतराफ मोदी सरकार के दावे की नफी करता है कि दहशतगर्द सियाहों को निशाना नहीं बनाते। भारत के साबिक फौजियों, सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं ने पहलगाम वाक़े को झूठा करार दे दिया। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जिक्र करेंगे यहाँ पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का, जहाँ भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में पैरा मिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मजीद 20 बटालियन तैनात कर रही है। KMS के मुताबिक मजीद 20 बटालियन की तैनाती की मंजूरी भारतीय वजारत दाखिला ने दी है। इस इक़दाम का मकसद इलाके पर भारत के जाबिराना तसल्लुत को मुस्तहकम करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा और जदीद आलात से लैस नई बटालियंस की तैनाती इस बात को जाहिर करती है कि भारत को हुर्रियत पसंद कश्मीरी आवाम की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना है। मकबूजा इलाके में पहले ही तकरीबन 10 लाख भारतीय फोर्सेज एहलकार तैनात हैं, जिन्होंने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। काबिज इंतजामिया ने जिला बडगाम में मजीद 3 कश्मीरियों की अमलाक जब्त कर ली। पुलिस ने मंजूर अहमद चौपान का 2 मंजिला मकान, मोहम्मद यूसुफ मलिक की 5 कनाल 13 मरले अराजी और 2 मंजिला रिहायशी मकान और बिलाल अहमद वानी की 19 मरले से ज्यादा ज़रई अराजी जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीरी मुसलमानों की अमलाक की मुसलसल जब्ती की मजम्मत करते हुए इसे इलाके में आबादी के तनासब को तब्दील करने की मोदी हुकूमत की साजिश का हिस्सा करार दिया। भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मंसूखी के बाद कश्मीरियों को ज़मीनों, घरों और दीगर अमलाक से महरूम करने का सिलसिला तेज कर दिया है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में कमान इंसाफ कॉन्फ्रेंस नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडमिरल नवीद अशरफ ने मारिका हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिल तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। नेवल चीफ ने बहरी रास्तों पर तिजारत की रवानी और बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशन यकीनी बनाने के इक़दाम की तारीफ की। एडमिरल नवीद अशरफ ने बहरी निगरानी और ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स, ज़ेरे आब और सतह आब पर चलने वाली खुदकार कश्तियों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये तीसरा स्पेल कल तक जारी रहेगा। तफसीलात बता रहे हैं नवीद हयात अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रात शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश दिन भर भी वक्फे से जारी रही। शहर में मजमूई तौर पर 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167, समनाबाद में 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। वासा और मुतलका इदारों ने बर वक्त निकासी आप को यकीनी बनाया और जिला इंतजामिया के अफसरान भी फील्ड में मौजूद रहे और निकासी आप का अमल का मुआयना करते रहे। लाहौर में बारिश के बायस हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि ठोकर न्याज बेग और दीगर मकामात पर छत गिरने के वाकयात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चों और ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5 अफराद के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी की है। पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। शेखुपुरा, होकारा, साहिवाल, हाफजाबाद, कसूर, फैसलाबाद और मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर अजला में मजीद बारिशों की तवक्को है और ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून का एक लो प्रेशर सिस्टम ना डेवलप हुआ है सेंट्रल पंजाब में। अभी जो है नॉर्थ पंजाब में, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के एरियाज आते हैं, यहाँ पे स्कैटर टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल्स ये कॉज कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक वासा, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतलका महकमे अलर्ट हैं ताकि नशेबी इलाकों से निकासी आप को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। रवां साल बारिशों के बायस
मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 77 शहरी जाँ भाग और 214 जख्मी हुए हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी तालीमी बोर्ड ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के पार्ट 1 और 2 के सालाना इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया। तफसील बताएंगे चौधरी मजहर। वफाकी तालीमी बोर्ड के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के इम्तिहान में तालबात ने मैदान मार लिया। साइंस ग्रुप में मरियम नदीम ने 1093 नंबर हासिल करके पहली, आमना नासर ने 1087 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि ह्यूमैनिटेरियंस ग्रुप में सना बीबी ने 1045 और अब्दुर्रहमान ने 1029 नंबर हासिल किए। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। उन्होंने इम्तिहानी नताइज को तलबा की साल भर की मेहनत का आईना करार दिया और कहा कि इम्तिहानी नताइज तलबा को अपनी सलाहियतों और मेहनत का अंदाज़ा लगाने का मौका फराहम करते हैं। आपसे कौम को बड़ी उम्मीद है, उन तमाम बच्चों और बच्चियों को जिन्होंने आज कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, और हम सब का भी आपको बहुत बहुत मुबारक। इम्तिहानी नताइज तलबा, वालदैन और असातिज़ा के लिए जज्बात से भरपूर होते हैं। नुमायां पोजीशन हासिल करने वालों ने कामयाबी को वालदैन की दुआओं, असातिज़ा की मेहनत का समर करार दिया। आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हों, बस आपको एक कॉन्टीन्यूड एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। टीचर्स की मेहनत है, उन्होंने हमेशा मेहनत की, सपोर्ट किया और मोटिवेट किया, हमेशा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं। जो हाथ है वो तो पेरेंट्स का ही होता है कि वो दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं और तरक्की के लिए दुआएं करते हैं, तो उनको मैं क्रेडिट दूंगा। अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सबकी दुआएं कबूल की और मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने वालिदैन और अपने स्कूल का फ़ख्र बन सकूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो मेरे टीचर्स हैं, उनकी मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। इम्तिहान हर तालीमी निज़ाम का अहम जुज़ है। नताइज सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि सीखने, समझने, संभलने और आगे बढ़ने का एक जरिया भी है। कामयाबी का असल राज ये है कि इम्तिहान और नताइज दोनों से सीखा जाए। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने माली साल 2024-25 के दौरान बिजली वाजबात की वसूली को 100% मुमकिन बनाया, जिसके नतीजे में आयस्को के लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी की मद में इजाफे से 14 अरब 70 करोड़ रुपए की खतीर बचत हुई। चेयरमैन आयस्को डॉक्टर ताहिर मसूद और बोर्ड मेंबरान ने चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद नईम जान और तमाम अफसरानों स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि ये नताइज बेहतरीन टीम वर्क और मौसर हिकमत अमली के बायस हासिल हुए हैं। इजलास में कहा गया कि वफाकी वज़ीर तवानाई की रहनुमाई में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन, दुरुस्त मीटर रीडिंग और जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल आयस्को के बेहतरीन नताइज की बड़ी वजह है। दोहा में पाकिस्तान के उम्दा आमों की नुमाइश जारी है, जिसमें आमों की मुख्तलिफ इकसाम रखी गई हैं और आम के जूस, अचार, मिठाइयाँ और दीगर लजीज अशिया भी पेश की जा रही हैं। दूसरे आम फेस्टिवल में 48 मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों ने शिरकत की। 1,23,000 किलोग्राम आम फरोख्त हो चुके हैं। नुमाइश 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नुमाइश से पाकिस्तान और कतर के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। नाजरीन, खेल में आपको बताएं कि दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाकाबिल शिकस्त सफर जारी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। थाईलैंड में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के खिलाफ 25-23, 25-20 और 25-20 से कामयाबी समेटी। इवेंट में कौमी अंडर 16 टीम की ये मुसलसल चौथी कामयाबी है। पाकिस्तान ने अपने तीनों पूल मैचेस में भी 3-0 से कामयाबी समेटी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच 22 और तीसरा 24 जुलाई को शेड्यूल है। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। हरारे में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 173 रन स्कोर किए। टिम रॉबिन्सन ने 75 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और
6 चौके शामिल थे। बेवन जेकब्स 44 रन बनाकर नॉट आउट बल्लेबाज रहे। जनूबी अफ्रीका के कोवेना मापाका ने 2 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर्स में 152 रन बनाकर आउट हो गई। डेवाल ब्रेविस 35 और जॉर्ज लिंडे 30 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और जेकब डफी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।